کبھی غور کیا آپ نے بیٹی کو؟ کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ بھائی اس مخلوق سے یعنی کہ اس جینڈر سے ہمیں یہ ساری زندگی ہمارے پر بوجھ بنے گا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو بیٹوں کو لوگ پریفر کرتے تھے۔ اور میں کس فیلڈ کا نام لوں، یہ نہ سوچا کریں اتنی بڑی مجھے ویورز مل جائیں گے کی بات کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا مسٹر ویری مچ آزاد، پتہ نہیں ابھی تک کیوں۔ اور آپ انڈائریکٹلی مجھے کہنے دیں کہ آپ کا بھی میسج کوئی اچھا نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک اور چھوٹی سی لاجک دیتا ہوں۔ السلام علیکم بہت اچھے دوستوں اور بہت پیارے بچوں، کمزور دل حضرات یہ ویڈیو نہ دیکھیں۔ کمزور دل حضرات میں کیوں کہہ رہا ہوں، دکھی ہوں، تھوڑا سا پریشان ہوں، غصے میں نہیں ہوں، غصہ کرنا بنتا نہیں ہے۔ کچھ عجیب و غریب لوگ اس دنیا میں آگے ہیں اور وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ باندر دے ہاتھ وچ بندوق یا باندر دے ہاتھ وچ ماچس۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا نا کرنا کہ اگر اس کے ہاتھ میں ماچس آ جائے تو کیا کرے گا، آگ لگا دے گا نا پورے جنگل کو، ٹھیک؟ اس لیے یہ فون رکھ لیں۔ اچھا بچوں، بہت غور سے، کیونکہ یہ آپ کی لائف کا معاملہ ہے، آپ کے فیوچر کا معاملہ ہے، آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، اپنے بچوں نے خاص طور پہ، لیکن میں کہوں گا بڑوں کو بھی میں بولوں گا کہ آپ بھی حوصلہ کریں تھوڑا سا اور بچوں کا ساتھ دیا کریں ایسی سچویشن میں۔ میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور اس کے بعد کچھ بچوں نے، بچے کون، گرلز، جو یونیورسٹی کی گرلز اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے بہت دکھی ہو کے مجھے ایک ویڈیو دکھائی آزاد چائے والا صاحب کی۔ ان پہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ بہت اچھے سے، عزت احترام سے، کیونکہ میں زیادہ جانتا نہیں تھا اور ڈیفینیٹلی پرسنل ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن جو یونیورسٹی کی بات تھی اس پہ میں نے کامنٹ کیا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا، اب جو انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی وہ یونیورسٹی تو ایک سائیڈ پہ رہے گی، وہ تو سیدھا پبلک کا مطلب ہے میرے بچوں پہ آ گئے۔ میرے بچوں کا مطلب ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی کے ہوں یا ادر دین یونیورسٹیز، پورے پاکستان کے جہاں بھی کوئی اسٹوڈنٹس کا ایشو ہوتا ہے، وہاں پہ اگر مجھے لگے کہ میرے بچے اپنی جگہ ٹھیک ہیں تو پھر میں انہیں ڈیفینیٹلی ڈیفینڈ کرتا ہوں۔ تو آزاد صاحب، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات اچھی لگے تو معذرت، کیونکہ یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں گے نہیں، ٹھیک؟ اس لیے کہ آپ بہت ہی پرسنل لیول پہ پتہ نہیں کس کے ساتھ آپ نے ان کی دل آزاری کر دی۔ مجھے خود بہت افسوس ہو رہا ہے یہ ویڈیو بناتے ہوئے کہ اس کی نوبت کیوں آئی۔ اور آپ جیسے بندے سے، یار آپ بہت معقول آدمی ہیں، بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں جو نظر آتا ہے، باقی تو آپ کو پتہ ہوگا، لیکن آپ کیسے یار کسی کی پبلک میں، کسی کی نہیں کروڑوں کی لاکھوں کی بیٹی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے میں نے بیٹی کے بارے میں تو بات نہیں کی، میں نے تو صرف یہ کہا کہ انہیں یونیورسٹی نہ بھیجو، میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ یونیورسٹی بھیجنے سے بہتر ہے کہ انہیں دبئی کے نائٹ کلب میں بھیج دو یا تھائی لینڈ بھیج۔ یار آپ کیسے، آپ مجھے بالکل یقین ہی نہیں آیا کہ یہ آپ ہیں۔ میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن آپ نے کہہ دیا اور آپ نے ماشاءاللہ پبلک، آپ نے ویڈیو بھی ڈال دی۔ آپ کو لگا کہ یہ آپ نے اپنا پوائنٹ، اپنی لاجک، اپنی، ٹھیک ہے آپ کی رائے جو بھی ہو وہ پرسنل لیول پہ ہے نا، آپ نے اسے پبلک کر دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے تو میں نے پبلک کر دیا تو کوئی بات نہیں۔ تو بھائی صاحب پبلک تو کر دیا، لیکن مجھے پتہ ہے آپ نے ویڈیو کے دوران یہ بھی کہا کہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انگلینڈ سے آیا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے انہیں کیسے سنبھالنا ہے، یا میں انہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کہتے ہیں یونیورسٹی نے۔ ارے یہ آپ کا ذاتی معاملہ بھائی،
आपने 1 मिनट भी बैठ के सोचा कि इस पे पब्लिक वाह वाह तो करेगी आपकी? वाह वाह का मतलब ये है कि आप बीच में कहते हैं कि जी मैं पता नहीं पाकिस्तान में ख़वातीन हैं और मर्द हैं और ना मर्द। यार क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं आप? और अफसोस मुझे फॉलोइंग पे भी है, पब्लिक पे भी है, आपकी व्यूअरशिप पे भी है कि आपको टोकते टोका। एक और मुझे किसी ने बताया कि आपको कमेंट्स मिले, आपने कमेंट्स में भी माशाल्लाह थोड़ा सा जो एहसास होना चाहिए था वो नहीं हुआ आपको। आपने कमेंट्स में भी अपने आप को जस्टिफाई किया, बहुत अच्छी बात है, करते रहें। लेकिन भाई साहब, इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें आगे आती हैं। आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट, इतनी कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। ये तो मैं वसूख से कह सकता हूँ। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि मैं नाराज़ हूँ, मैं राज़ी हूँ, मेरे पसंद की बात हो ना पसंद, मैं लॉजिक पे बात करता हूँ। तो आज भी इस वीडियो के दौरान ही कोशिश करूँगा कि हर बात लॉजिक से करूँ। देखिए, मैंने अभी आपको एक आज़ाद साहब की, अभी भी मैं साहब ही कह रहा हूँ आपको, क्योंकि जाहिर है ये मेरा कंडक्ट है, ये मेरी लैंग्वेज है। आप जो कर रहे हैं वो आपकी लैंग्वेज है, वो आपका कंडक्ट है। मुझे आपसे उस लहजे में बात करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा, आपको सूट नहीं करती ना यार। किसी के डिसेंट होने में क्या जाता है, उसका अपना ही कुछ जाता है और किसी का कुछ नहीं जाता। आप कहेंगे कि ठीक है मेरी, लेकिन देखें, आप एक फादर बन के सोचें, आप अपना ना सोचें। आप वो फादर बन के सोचें कि जिनकी बेटी यूनिवर्सिटी में जा चुकी है, तो आप उसे क्या मैसेज दे रहे हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी में इतनी लुट मची हुई है जो आप उसे दुबई पता नहीं नाइट क्लब और किस से मिला रहे हैं? अगर वहाँ पे कोई इवेंट होता है, वहाँ पे कोई फंक्शन होता है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ आपको जाना मुनासिब नहीं लगता, तो बच्चे नहीं जाएंगे ना। लेकिन रेगुलर बच्चों, अच्छा आपको मैं एक और बात बताऊँ, अगर आप कहते हैं बेटी को, मुझे सीरियसली मुझे वो ज़माना याद आ गया जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। उसके पीछे क्या लॉजिक थे पता है आपको? कभी गौर किया आपने? बेटी को क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई इस मखलूक से, यानी कि इस जेंडर से हमें ये सारी ज़िंदगी हमारे पे बोझ बनेगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो बेटों को लोग प्रेफर करते थे। और आप इनडायरेक्टली मुझे कहने दें कि आपका भी मैसेज कोई अच्छा नहीं है। आपको मैं एक और छोटी सी लॉजिक देता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, जिस घर में बेटा है ही नहीं, अल्लाह ने बेटियां अता कर दी, लोगों की 2, 4, 3, 6 कितनी बेटियां, तो आप क्या कहना चाहते हैं? उन्हें मत पढ़ाओ। अब आप कहेंगे मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने उन्हें कहा यूनिवर्सिटी ना भेजो। यूनिवर्सिटी ना भेजो तो इसका मतलब है हायर एजुकेशन ना लो, इसका मतलब है कैरियर ना बनाओ। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको वो कुछ बताऊंगा कि आप ये मानने पे तैयार होंगे कि बेटी को, और अगर नहीं मानेंगे तो आपकी मर्जी है, आपका कंडक्ट है, मेरा तो नहीं है ना ही। लेकिन मैं बच्चों को तो क्लियर करूँगा ना, मैं उन हज़ारों पेरेंट्स को तो क्लियर करूँगा ना, मैं उन बेटियों को तो क्लियर करूँगा ना जो सिर्फ नीचे कमेंट करके अपनी बेबसी जाहिर करती हैं कि भाई ये। आपको पता है, आपके बारे में मैंने पिछली वीडियो जब बनाई तो वो तो सिर्फ डिग्री होने या ना होने के मुतालिक थी। तो वहाँ पे, ये मैं कंडक्ट की बात कर रहा हूँ, डिसेंसी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक साहब ने, उन्हें पता है, जो वो ये वीडियो भी देखेंगे, उन्होंने आपके बारे में कुछ अच्छे अल्फाज नहीं बोले, ठीक है, आपको अजीब कह के मुखातिब किया, और फिर थोड़ा सा उन्होंने वो गलत लैंग्वेज में मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने ये बड़ा अच्छा किया। तो मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिया। ये मेरा कंडक्ट था, वो आपके बारे में था, लेकिन मैंने डिलीट किया। मैंने कहा नहीं यार, ये मुनासिब बात नहीं है, ना ही मेरा कोई उनसे पर्सनल लेना देना है। लेकिन जाहिर है, मैं अब वो, उन्होंने अपनी राय दी, मैं अपनी राय दे।
लेकिन मुझे ये भी समझाएं, जो आपने सरेआम बहुत से, ये जो अभी मैंने आपकी वीडियो देखी है बेटियों के बारे में, कि बेटी को यूनिवर्सिटी नहीं भिजवाएं या मत भिजवाएं, पता नहीं क्या था। आपने कितने ही अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि जिनका बेटे हैं ही नहीं, वो क्या करें, वो उन्हें एजुकेशन ना दें या उन्हें यूनिवर्सिटी एजुकेशन ना दें। ठीक है, बाद में बताता हूँ आपको क्यों ना दें। लेकिन आपने क्या सोच के ये इस लेवल पे आके आपको बात करनी पड़ी कि इसका मतलब है कि जो आपकी बात का मतलब क्या, आपकी बात का मतलब है कि इस वक्त पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में या इवन हायर एजुकेशन में, जैसे मेडिकल कॉलेज हैं तो वो भी ज़ाहिर यूनिवर्सिटी की तरह डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन है ना, तो बहुत सारे डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ में जितनी लड़कियां पढ़ती हैं, जितनी बेटियां पढ़ती हैं, आप उन्हें भी गलत कह रहे हैं, आप उनके पेरेंट्स को भी गलत कह रहे हैं, और आप अजीबोगरीब लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं यार। ना मर्द और पता नहीं क्या, मतलब मर्द होने का मतलब क्या है कि बेटी को एजुकेशन नहीं दो, बेटी को वो हायर एजुकेशन नहीं दो, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ नहीं, बेटी को ठीक है आप कहेंगे कि हाँ जी यूनिवर्सिटी नहीं भेजना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटीज़ को क्या समझते हैं आप? बेटियों और ख़वातीन की इज़्ज़त है, और वहाँ जितने लड़के हैं या मर्द हैं, आपका कभी मुसीबत तो यही है ना आज़ाद साहब कि आपका इंटरेक्शन उन लोगों से है ही नहीं है। आप उनमें उठे बैठे आप कहेंगे कि हाँ जी मैंने दुनिया में ये देखा तो वो देखा तो ऐसे किया, वह कख नहीं देखा। आपने देखा होता तो कम से कम हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की इज्जत पे बात ना करते। आपको थोड़ी सी तकलीफ होती बात करते हुए कि यार मैं उन लाखों लोगों की बेटियों के बारे में बात कर रहा हूँ और पब्लिकली बात कर रहा हूँ, तो आपको बहुत बहुत अजीब लगना चाहिए था। मैं बहुत एहतियात से बात कर रहा हूँ। अभी भी मुझे आपका ख्याल है कि कोई मेरे मुंह से ऐसी गलत बात ना निकले कि आप परेशान हो। मुझे आपकी राय से इख्तिलाफ है, मुझे आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन आप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हूँ, और लोग फिर आपने कहा कि जी मुझे सारी यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं, वो खे खाती हैं आपको बुला के, क्या करती हैं आपको बुला के, क्या पूछती हैं आपसे? आप अपना बिजनेस करें, अपना कारोबार चलाएं, लोगों को कोर्सेज करवाएं, लेकिन आप फिर मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि आप ज़माने जाहिलियत जब बेटियों को दफन कर उस तरफ तो ना जाए ना। एक और मुझे किसी ने वीडियो दिखाई, वो भाई साहब थे हाफिज हसन इकबाल चिच, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे तो वो गालियों से भरपूर, और वो भी इसी टॉपिक पे, वो देखिएगा ज़रा जाके यूट्यूब पे, इसी टॉपिक पे कि बेटी को स्कूल ना भेजो। अजीब वाहियात सा गंदा सा गाना उन्होंने बनाया हुआ है भाई, गाना बनाया हुआ है या पता नहीं क्या बनाया हुआ है। वो मैं तो एक क्लिप देख के परेशान हो गया, मैं कि यार परे करो इसे, ये कौन है? उनसे तो जब मेरी बात होएगी, अभी तो मुझे दिल ही नहीं कर रहा उनसे बात करने को सीरियसली। बच्चों ने मुझे कहा कि जी ये देखें, और मैं कि यार इसे परे करो ना, ये मैं इसके बारे में क्या ही बात करूं। इसके बारे में तो खुद इंसान एक नॉर्मल एक पढ़ा लिखा या ना भी पढ़ा लिखा हो, एक नॉर्मल समझ बूझ रखने वाला इंसान, उसे खुद ही समझ आती है कि ये हाफिज साहब क्या कर रहे हैं। दूसरा देखें आप कर क्या रहे हैं, आप जहन साजी जिसे उर्दू में कहते हैं ना, ब्रेन वॉशिंग, आप पब्लिक की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, और आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं सबको अमीर बनाऊंगा। अमीर बनने से क्या होगा? उन्हें क्या शर्म आ जाएगी, उन्हें गैरत आ जाएगी, उन्हें ढंग से दुनिया पे रहना आ जाएगा। मैं अभी सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, मुझे उसका जवाब। आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन, ऐसे कर लेते हैं ना, हायर एजुकेशन में बेटियों को मत भेजें। आप आने वाली सारी नस्लों की माओं की बात कर रहे हैं। मतलब
اگر ہم انہیں ایجوکیشن نہیں دیں گے، اگر ہم انہیں نہیں پڑھائیں لکھائیں گے، انہیں سمجھ بوجھ دنیا نہیں سکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلے بھی کسی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ 95% جاہل خواتین ہیں، تو اسی طرح لوگ کہتے رہیں گے، کیونکہ سب نے جی آزاد صاحب کہتے ہیں میرے پاس آ کے کورس کر لو، یونیورسٹی مت جاؤ۔ تو آنے والی ساری نسلوں کی مائیں جو ہیں وہ میٹرک پاس ہوں گی یا انٹرمیڈیٹ پاس ہوں گی، یا وہ بھی اس پہ بھی اختلاف ہوئے گا نا آپ کو، کیونکہ آپ کی رائے میں تو یہ تو بڑی غلط بات ہے، بڑی بے شرمی کی، بڑی غیرت سے ہٹ کے بات ہے کہ بیٹی کو اسکول بھیجو، بیٹی کو کالج بھیجو، بیٹی کو یونیورسٹی بھیجو، کہیں نہ بھیجو، بس میرے پاس بھیجو اور میرے پاس آ کے وہ کورس کر لے تاکہ وہ پیسے کما لے، یا گھر بیٹھ کے، آپ نے کہا گھر بیٹھ کے کر لے تاکہ وہ پیسے کما لے۔ اس نے زندگی بھی گزارنی ہے یا نہیں گزارنی؟ اس نے لوگوں سے سوشل لائف میں یا دوسری یہ جو اس کی پرسنل لائف ہے، اس کی فیملی لائف ہے، کچھ سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا؟ اس نے اپنے بچوں کے سامنے بھی زندگی میں بیٹھ کے، آپ کو پتہ ہے مائیں، آپ کو تو نہیں پتا ہوگا، آپ کو خاک پتا ہوگا، مائیں کتنی جھجکتی ہیں اور کتنی شرماتی ہیں جب انہیں پتہ، شرماتی تو نہیں، جھجکتی ہیں اس بات سے، وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے مزید پڑھیں، مزید ترقی کریں، لیکن جب وہ ہائر ایجوکیشن میں جاتی ہیں تو مائیں تھوڑی جھجکتی ہیں کہ بھائی میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں اپنے بچوں جتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، تو میں ایسی مطلب بچوں سے اتنے مشورے نہیں دے سکتی، یا ان کے کاؤنٹر آرگیومنٹ میں ان سے بات نہیں کر سکتے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے مائیں زیادہ پڑھی لکھی ہوں تاکہ وہ اپنے بچوں کو فارمل انفارمل ایجوکیشن دے سکے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے بھی زیادہ بہترین ہوں جو پہلے ہو رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں آ کے کورس کر لو، کس لیے کورس کر لو؟ پیسہ کمانے، میں کہہ رہا ہوں مائیں اچھی بننی چاہیے، آپ کہہ رہی ہیں پیسہ زیادہ کمانا چاہیے۔ اور پیسہ کمائیں یار، 100 دفعہ کمائیں، وہ آپ کی لیونگ کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ بیٹی اور بیٹا کیا ہوتا ہے؟ ایسے تو نہ کریں نا، آپ انڈائریکٹلی آپ ہوا دے رہے ہیں ایکسٹریمزم کو۔ وہ جو کہتے ہیں نا ڈیجیٹل ٹیررزم اور سائبر بولنگ اور یہ سب، وہ یہی ہوتا ہے نا۔ آپ برین واش کریں، آپ ذہن سازی کریں ان سب لوگوں کا، ان سب انسانوں کا جن کی بیٹیاں جن کی بیٹیاں آلریڈی یونیورسٹی میں گئی ہوئی ہیں، یا مجھے یہ بتا دیں کہ جو بیٹیاں اس وقت ریکویسٹ کر رہی ہوں گی اپنی پیرنٹس سے کہ جی ہمیں فردر ہائر ایجوکیشن کے لیے فلاں یونیورسٹی جانا ہے، تو کیا ہوگا؟ ان کے ابو جان کہیں گے یہ یونیورسٹیز میں تو یہ ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے، تو ایسے ہوتا ہے، تو ویسے ہوتا ہے۔ آپ نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی نا یار۔ آپ کی اکثر باتوں کا تو میں جواب دینا مشکل ہے میرے لیے۔ آپ نے ایک 12 سال کی بچی کی بات کی، انگلینڈ کی مثال دی کہ جی اس کے ساتھ یہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا۔ مجھے صرف لاجک پہ بات کرتا ہوں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ 12 سال کی بچی جس کی آپ نے مثال دی وہ یونیورسٹی میں تھی۔ 12 سال کی بچی یونیورسٹی میں ہوتی ہے۔ اب کہیں سے بھی اٹھ کے کہیں سے بھی جوڑ دیا آپ نے، کچھ بھی کہہ دیا، وہاں سے اٹھ کے، انگلینڈ سے اٹھ کے، آپ کہہ رہے ہیں انگلینڈ کی آپ پیدائش ہیں، تو انگلینڈ سے اٹھ کے ہماری قسمت کے آپ ادھر آ گئے ہیں، تو آپ انگلینڈ کے بارے میں برائیاں شروع ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ انگلینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو مطلب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اس وقت، لیکن آپ کو ابھی آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں رہنا سیکھیں، مت چھیڑیں دوسروں کو، اور دوسروں کی پرسنل لائف میں تو مت ہی گھسیں۔ اور آپ تو پبلکلی سیدھے ہی ہو گئے ہیں، لیکن آئندہ اگر آپ سیدھے ہوئے تو مت بھولیے گا آپ کے ہمسائے میں کوئی بیٹھا ہوا، اور یہ مت پوچھیے گا کہ تم کون ہو۔ پوچھ تو میں ٹرمپ کو بھی لیتا ہوں جب باری آئے۔ میں جو بھی ہوں، میں جیسا بھی ہوں، میں ان بچوں کی
फ्यूचर के लिए, इन बच्चों की एजुकेशन के लिए, इन बच्चों की वेलफेयर के लिए, इनकी आने वाली लाइफ के लिए मैं तो सामने आऊँगा, चाहे दुनिया में कोई भी हो, पाकिस्तान से हो या जहाँ से भी हो। अगर उसने कोई ऐसी दोबारा बात की तो मैं तो हूँ इधर। और मैं तो आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं बड़ी एहतियात से बात कर रहा हूँ, मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी वीडियो थी उसमें इतना ही प्यार हो सकता है। भैया आपने क्या क्या बातें नहीं की, क्या क्या मिसालें नहीं दी। अभी आप सबको मैंने कहा था मैं लॉजिक से बात करूंगा, यार क्या कसम से। अच्छा, आप यूके की बुराई की, आपने 12 साल बच्ची का बता दिया। आपने बीच में वो दूसरी वीडियो में या पता नहीं कहाँ, आपने माशाल्लाह, मैं नहीं कहता कि आपने जज्बात में किया होगा, और मैं ये भी नहीं कहता कि आपने गुस्से में किया होगा, और मैं ये भी नहीं कि आपने जानबूझ के वो एक्शन अपनाए कि आप बड़े ही अपसेट हैं लोगों के बारे में कि जो बेटियों को यूनिवर्सिटी भेजते हैं। आप हाक अपसेट होंगे, आपकी बात में कहीं से सिरे से लॉजिक ही नहीं है। और यूके से छोड़ के आप पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान में रहते हुए भी आपको क्या तकलीफ हो रही है। आपने खुदा ना यार, आपने आपकी वीडियो का क्लिप उठा के देखें, अपनी वीडियो देखें, आपने पता है क्या बोला उस वीडियो में? ब्लडी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और आप बड़े ठाठ से कहते हैं कि यहाँ मेरा इतना बिजनेस हो गया तो मैंने इतना कमा लिया और मैंने लोगों को गुर्बत से निकाल लिया, लोगों को अमीर बना दिया। लोगों को जो मर्जी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम है, बड़ा नेकी का काम है। लेकिन अगर ये देखें, ये आप किस तरह हमारे उसी अपने मुल्क में बैठ के गालियां दे रहे हैं उसे। पाकिस्तान को गालियां देनी शुरू कर दें, पाकिस्तान के लोगों पे तनकीद करें, 100 दफा करें, मेरे पे तनकीद करें, 100 दफा करें। लेकिन जहां रहते हैं भाई, जहां सबको छोड़ के आप कहते हैं मैं पाकिस्तान आ गया, उसी को गालियां दी जा रहे हैं। या आपको पता है, आप तो फिर कहते हैं मैं यूके में पैदा हुआ, यूके में पैदा, ब्लडी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये कैसे कर सकते हैं आप? और अभी तो मैं, यकीन करें, आपकी मिन्नत कर रहा हूं भाई। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि आप ब्रेक पे पांव रखें और आप ये जान लें, आप ये समझ लें कि आइंदा अगर आप बेटियों पे, यूनिवर्सिटीज पे, एजुकेशन पे, यूनिवर्सिटीज के बच्चों पे आएंगे तो मैं सामने खड़ा हूंगा और फिर मैं इतने प्यार से बात नहीं करूंगा। और ये सब जानते हैं कि मैं कहां तक कितनी बात कर सकता हूं और कितनी नहीं कर सकता हूं। अब आते हैं लॉजिक की तरफ। सॉरी बच्चों, आज़ाद साहब आप भी, और मेरे बच्चों आप भी, और बड़ों आप भी। मैं देख रहा था, आपकी वीडियो देख रहा था, फिर मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई कि आप कहना क्या चाहते हैं। गर्ल्स एजुकेशन, यानी उन्हें मुंशी बनाएं, जिस तरह आप लड़कों को मुंशी बना रहे हैं, बच्चियों को भी मुंशी बनाएं आपके कोर्सेज करके, ठीक है। आप मुझे बताएं, आपने कहा कि मेरी भी बेटियां हैं, आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी या मेरी बेटी, चले आपको बुरा ना लगे, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं क्या चाहूँगा, मेरी बेटी की कल को शादी हो, ठीक, और मेरी बेटी ने किसी डॉक्टर को दिखाना हो, तो आपके कहने के मुताबिक तो लड़कियों को तो डॉक्टर, ज़ाहिर है डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन तो मेडिकल कॉलेज है, लड़कियां तो डॉक्टर होंगी नहीं। फिर हम किसे दिखाएंगे? मेल डॉक्टर्स को दिखाएंगे, मेल गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, क्योंकि आपने तो मना कर दिया ना सबको। दिमाग से सोचा कभी आपने कि आप कह क्या रहे हैं? या चलें आप कहते हैं माहौल ऐसा तो माहौल वैसा तो माहौल ऐसा। आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर्स अगर नहीं होंगे, नर्सेज अगर नहीं होंगी, ठीक, आप मुझे ये बताएं टीचर्स अगर नहीं होंगी,
स्कूल्स में, गर्ल्स स्कूल्स में, गर्ल्स कॉलेजेस में अगर फीमेल टीचर्स नहीं हुई तो वो कहां से, आसमान से उतर के आएंगी? यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन तो उन्होंने ली नहीं, क्योंकि आपने कह दिया था ओहो नाइट क्लब में चले जाओ या थाईलैंड चले जाओ। तो वो टीचर कहाँ से आएंगी? वो आप उस वक्त हमें ये लगेगा ना, हमारी बेटी यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करवाया हमने, तो उसे मेल टीचर पढ़ाएं आके, तो क्या करेंगे? लॉजिक से बात करें ना, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान में चलें पॉलिटिक्स में, ठीक है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं, CS करके हम कहते हैं कि अच्छा यार कोई फीमेल मिल जाए, ठीक है। जुडिशरी में फीमेल आना शुरू होगी, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आई? इंजीनियरिंग में आ गई, आर्किटेक्ट बन गई, सब कुछ हो गया। और आप इन सब को कह रहे हैं कि खुदाया, आप सबके करैक्टर पे बात कर रहे हैं यार, कि यानी जिस भी खुदा ना खास्ता जिस भी बेटी ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेके निकली है, वो पता नहीं कहाँ से आई है। और वो आप कैसे यार आप मुझे ये बताएं, आपकी हमारी बेटी को एक फीमेल लॉयर भी चाहिए होती है, हमारी बहनों को, हमारी माओं को, वो कर सकती हैं जाके मेल लॉयर से अपनी कहानी बयान कर सकती हैं। तो लॉयर कहाँ से आएंगी? फीमेल लॉयर कहाँ से आएंगी? आप चाहते हैं कि जी अच्छा साइकोलॉजिस्ट आपको चाहिए, ठीक है, कोई ज़हनी बीमारी हो, कोई परेशानी होगी, कोई ये होगी, आप कहें बेटियों को, सबकी बेटियों को कहें कि जाके मेल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, कोई काबिल आदमी तो है, उस वक्त कहाँ भेजेंगे? मुझे बहुत सी स्टूडेंट्स कहती हैं कि जी हमें कोई फीमेल साइकोलॉजिस्ट बताएं, क्योंकि हम एंजाइटी में हमारी जाहिर है पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चीज़ें हैं, हम मेल साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस नहीं कर सकते, तो जाहिर है उन्हें फीमेल साइकोलॉजिस्ट चाहिए होती हैं। और मैं किस फील्ड का नाम लूं जहां पे मैं तो एक ही बात का जवाब आपके पास नहीं होगा, मिस्टर वेरी मच आज़ाद, पता नहीं अभी तक क्यों, कि आप और मैं अकेले मैं इसलिए नहीं कर रहा, आज भी मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ कि आपको कोई बात तकलीफ ना दे, आपके दिल आज़ारी ना हो। हमारी बेटी जब बड़ी होगी, उसको गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, तो बकौल आपके डॉक्टर भी मत बनो, फीमेल डॉक्टर नहीं मिले तो कहाँ जाएंगे? अरे बात करते हुए व्यूअर्स का ना सोचा करें यार, ये ना सोचा करें ओ इतनी बड़ी मुझे व्यूअर्स मिल जाएंगे, मुझे व्यूज मिल जाएंगे, इतनी तनकीद आएगी, इतनी। फिर आपने दूसरी वीडियो में कहा कि मेरा काम चलेगा, मेरी वाह हो जाएगी, ओहो तुम्हारी तनकीद से भी, क्रिटिसिज्म से भी ये हो रहा है। तो खैर, इससे पहले कि कुछ गलत बोल दूं, आज़ाद साहब रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा ख्याल करें, ख्याल कह रहा हूँ, कोई बुरा वर्ड नहीं बोल रहा, कोई ऐसी बात नहीं आपके साथ की, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान पूरे के पेरेंट्स, स्पेशली फादर्स, ऐसी चीज़ों से बहुत तकलीफ में आते हैं, बहुत हर्ट होते हैं। आपको बात समझ में आ जाए तो आपकी मेहरबानी है, ऐसी बात ठीक है, आपकी पर्सनल राय जो भी हो अपने अंदर रखा करें, अपनी सराउंडिंग्स में बैठ के, जहां आप लोगों के साथ गप्पे मार रहे होते हैं ना, मुझे वो भी पता है, आप उनके साथ बैठ के इस तरह की फजूल वाहियात किस्म की गुफ्तगू कर लिया करें, कोई बात नहीं है, ठीक। लेकिन कैमरा पे आके, पब्लिक में आके वीडियो बना के ये सस्ती शोहरत ना लें, आपको सूट नहीं करता ना यार। आपको अल्लाह ताला ने एक नाम दिया है, एक स्टेटस दिया है, एक मुकाम दिया है, उस मुकाम का लिहाज करें। ये ना करें कि हाँ मेरे आगे कैमरा आ गया तो हूँ मैं जो मर्जी करा, जो मर्जी वाला चक्कर कोई नहीं है भाईजान, जो मर्जी आप करके देखें, आप करें यूनिवर्सिटी के बारे में बात, करें बेटी के बारे में बात, करें किसी के बेटे के बारे में बात, और फिर देखें। मैं आपको
कुछ भी नहीं कह रहा, मैं उन हज़ारों वालिदैन से माजरत करता हूँ जिन तक ये मैसेज आपका पहुँचा। मैं माजरत करता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे, मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे ये टॉपिक डिस्कशन में लाने पड़े। लेकिन मैं उन सब से माजरत चाहता हूँ और उन सब को कहता हूँ कि अपनी बेटियों को, बेटों को भी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही पाकिस्तान में ये है कि हमारी एजुकेशन नहीं है, हमें समझ बूझ नहीं है, हमें ज़िंदगी गुजारनी आती नहीं है सिर्फ एजुकेशन की वजह से। और अगर कोई समझता है कि यूनिवर्सिटी जाने से हमें ज़िंदगी समझ में आएगी, तो यस, आपको आएगी। आपको थोड़े बहुत धक्के लगेंगे, आपको एक टाइम गुजारना पड़ेगा, आप दुनिया में डिफरेंट लोगों से उठना बैठना मिलना जुलना, आपको समझ बूझ आएगी और आप आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार होंगे। तो भैया, वालिदैन से भी माजरत, बच्चों से भी माजरत, हर बेटी से माजरत, सीरियसली। और बच्चों, खास तौर पे बेटियों, आइंदा कभी इस तरह की कोई वाहियात किस्म का कमेंट, वीडियो, मैसेज उसको आपने कंसिडर नहीं करना, दिल पे नहीं लेना, परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ अपनी लाइफ का सोचना है और आपने सिर्फ अपने मुस्तकबिल का सोचना है। आप वो हैं जिन्होंने कल को पूरा ख़ानदान संभालना है, नस्लें चलानी है। मर्दों ने नहीं चलानी होती, मर्दों के ज़िम्मे कुछ और है। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने परवरिश आपके ज़िम्मे रखी हुई है। मर्द ने आपको प्रोवाइड करना है सब कुछ, लेकिन तरबियत आपने करनी है, परवरिश आपने करनी है। उसके लिए अब यूनिवर्सिटी क्या, अब दुनिया जहान की सारी एजुकेशन लें और अपने आप को अपग्रेड करें। पैसा भी आ जाएगा, लाइफ भी बन जाएगी, और आने वाली आपकी फैमिली के लिए ये बहुत ज़रूरी है और आपकी लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की फजूल वाहियात किस्म की बातों में ना आए। और हर उस फादर से अगेन, और हर उस पेरेंट से माजरत। सॉरी बच्चों, आज ये मजबूरी थी, मैंने कभी इस लहजे में आपसे बात नहीं की, लेकिन ये बात ऐसी थी कि मुझे खुद नहीं समझ आ रही, और मैंने बहुत कंट्रोल करके, जो मुझे लोग जानते हैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह पता है, जो मेरे करीब के लोग हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि मैंने आज कितना कंट्रोल किया। जब वो ये वीडियो देखेंगे तो वो वाकई हैरान होंगे कि मैं इतनी तमीज़ से इतनी बड़ी बात को हैंडल कर रहा हूँ। तो अभी चलता हूँ, उम्मीद है फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी बात के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।